Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has resigned from the post of Chief Minister today, according to the announcement made on Sunday. In the evening, he met Delhi Deputy Governor Vineet Kumar Saxena before formally resigning. At a meeting of AAP MLAs, 43-year-old South Delhi Kalkaji Assembly constituency leader Atishi Marlan was elected in place of Kejriwal. Earlier, there was talk in the media that Atishi will be the chief minister. Because, even though there were many senior MLAs in the party, it was seen that Kejriwal had too much faith in Atishi, the leader of the party. After the arrest of former Chief Minister Manish Sisodia in the Delhi Abkari corruption case, Atishi replaced him and headed many other departments, including the important education department. When Chief Minister Kejriwal was arrested in the same corruption case and was in jail for more than 5 months, Atishi and one of the youth ministers, Saurabh Bhardwaj, were the key faces of the government and were leading the front of the AAP government. On the occasion of Independence Day last August 15th, Atishi had the privilege of hoisting the national flag in place of the chief minister in the official program organized in Delhi. This was possible because the chief minister gave him a chance. Therefore, after Kejriwal announced last Sunday evening that he would resign from the post of chief minister within 48 hours, Atishi was the main face of the party for the post of chief minister. However, senior AAP leader Kailash Galot, Minister Saurabh Bhardwaj, and other names were in the news. Even the name of Kejriwal's wife and former IRS, Indian Revenue Service, Sunita Kejriwal, came to the premises of the speculations. However, since Sunita was not elected to the Delhi Assembly, and if she was made the chief minister, the BJP was afraid of linking the AAP with the party of family members and campaigning. The name of Sunita was slowly removed from the possibility of the chief minister, and Atishi became the chief minister. In today's AP MLA party meeting, Atishi's name has been institutionally approved, and Atishi is going to manage the Union Territory as chief minister. As the 5-year tenure of the Delhi government ends on February 23, 2025, the Election Commission has confirmed that the assembly elections will be held in the state before that. While announcing his resignation as chief minister, Kejriwal had called for Delhi Assembly elections to be held in November. However, Kejriwal had recommended the resignation of the chief minister and the dissolution of the assembly. However, only the chief minister has changed in the state as before. AP is in power. Therefore, the BJP leaders have responded that it depends on the Election Commission when to hold the election before February 23, 2025. If there is no early election, Atishi's term as chief minister will be only 5 months. It is futile to expect that much will change in Delhi politics in these 5 months. Voting for Haryana Assembly will be held on October 5th. After it became clear that Atishi will be the chief minister of Delhi, he has come in front of the media and has appealed to the people of Delhi to elect Arvind Kejriwal as the chief minister in the election. Atishi expressed his gratitude to the AP chief Arvind Kejriwal and the party for giving him such importance as the post of chief minister. However, Atishi clarified in the media that Arvind Kejriwal is the only chief minister of Delhi. तो 5 साल तक हमारी जिंदगी में सुधार आता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमने गलत पार्टी को वोट दे दिया, गलत कैंडिडेट को वोट दे दिया, तो 5 साल तक हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वोट का फैसला एक बार हो गया तो 5 साल तक हम उसे बदल नहीं सकते हैं। इसलिए जब आप 12 मई को वोट डालने जाएं, तो सोच समझकर सूझबूझकर वोट डालना है। जिस तरह 4 साल पहले आपने सोच समझकर आम आदमी पार्टी को वोट डाला था, 4 साल पहले भी हम आपसे वोट मांगने आए थे, तब आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता था, अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। लेकिन आप लोगों ने हम पर भरोसा किया, आप लोगों ने हम पर विश्वास किया और 2 बड़ी पार्टियों के सामने कांग्रेस और बीजेपी की जगह आपने आम आदमी पार्टी को अपना वोट दिया। दिल्ली में से 70 में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी को दिए और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया।
जिस दिन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने दिन रात दिल्ली की जनता के लिए और आपके लिए मेहनत की। हम सब दिल्ली वाले हैं। हमें याद है 4 साल पहले एक ऐसा समय था जब हर 6 महीने में बिजली के दाम बढ़ा करते थे, जब गर्मियों की रातों में घंटों घंटों तक बिजली जाती थी। एक बार बिजली चली जाए तो वापस कब आएगी पता नहीं होता था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन, पहले ही कैबिनेट के डिसीजन में बिजली के दाम आधे कर दिए। आज उस बात को 4 साल हो गए हैं, 4 साल में एक भी बार बिजली का दाम नहीं बढ़ा है। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है और 24 घंटे बिजली आती है। अरविंद केजरीवाल ने पानी का बिल माफ किया। आज दिल्ली के लाखों घरों में 700 लीटर तक का पानी का बिल 0 आता है। बिजली सस्ती हुई, पानी फ्री मिला, 24 घंटे बिजली आई। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ जो लोग आज मंच पर बैठे हैं। ये आपकी वजह से हुआ, ये आपकी वोट की ताकत की वजह से हुआ, ये आपने जो आम आदमी पार्टी को वोट दिया उसकी वजह से हुआ। आपको ये भी याद होगा कि 4 साल पहले तक सरकारी स्कूलों का क्या हाल था। आप सरकारी स्कूल के गेट के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होता था सरकारी स्कूल। खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, बच्चे फर्श पे बैठे होते थे, टीचर अक्सर क्लास से बाहर हुआ करती थी। ये था दिल्ली का सरकारी स्कूल। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, सिर्फ 4 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया है। आज सरकारी स्कूलों की नई बिल्डिंग प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती हैं। आज जितने अच्छे डेस्क सरकारी स्कूल में हैं, उतने अच्छे डेस्क प्राइवेट स्कूल में नहीं हैं। टीचरों को ट्रेनिंग के लिए देश विदेश भेजा जाता है कि वो आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। और इसी सब का नतीजा है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। इसी सब का नतीजा है कि पिछले 2 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 300 से ज्यादा बच्चों ने IIT का एग्जाम पास किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। और ये आपकी वोट की वजह से हुआ है, जो 4 साल पहले आपने आम आदमी पार्टी को डाला था। आज सरकारी अस्पताल में सुधार हुआ है। आज सरकारी अस्पताल में साफ सफाई है। आज सरकारी अस्पताल में हर दवा फ्री मिलती है। आज सरकारी अस्पताल में हर टेस्ट फ्री होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाइए और आपको 1 महीने से ज्यादा इलाज की तारीख मिले, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि आप अपना इलाज प्राइवेट में करवा लीजिए, पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, चाहे लाखों रुपए लग जाए, पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी, दिल्ली सरकार देगी। ये सब आपकी उस वोट का नतीजा है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो पिछले 4 सालों से दिन रात आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने हर संभव कोशिश कर ली है कि अरविंद केजरीवाल के काम में अड़ंगा डाला जाए, अरविंद केजरीवाल को काम करने से रोका जाए। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें नए स्कूल बनाने हैं, दिल्ली की जमीन जो DDA के पास है, केंद्र सरकार के पास है, मोदी जी कहते हैं हम स्कूल के लिए जमीन नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें नए अस्पताल बनाने हैं, तो मोदी जी कहते हैं अस्पताल के लिए जमीन नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें नए कॉलेज बनाने हैं, तो मोदी जी कहते हैं हम कॉलेज बनाने नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें मोहल्ला क्लिनिक बनानी है, तो मोदी जी कहते हैं हम बनाने नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें CCTV कैमरा लगाने हैं, तो मोदी जी कहते हैं हम लगाने नहीं देंगे। आपको पता है CCTV कैमरा की फाइल, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल तब जाके पास हुई जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 10 दिन तक धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे,
तब जाके आपकी सीसीटीवी कैमरा और मोहल्ला क्लिनिक की फाइल जाके पास हुई, जिसे मोदी जी ने 3 साल से रोका हुआ था। 10 दिन पे धरने पे बैठने के बाद और भूख हड़ताल पे बैठने के बाद। पर आप ही बताइए, अगर हर फाइल के लिए धरना देना पड़े तो सरकार चल सकती है क्या? चल सकती है ऐसे सरकार? ऐसे सरकार नहीं चल सकती है। जब आप लोगों ने अपने वोट से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को आपके लिए काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस जिसको लगता है पूरा अधिकार होना चाहिए, अपना हाथ खड़ा करके दिखाइए। और मीडिया वाले भी दिखा दें कि आज पूरी दिल्ली की जनता को लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास पूरा अधिकार होना चाहिए। जब हरियाणा के लोग वोट डालते हैं, वो जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के पास पूरा अधिकार है। जब राजस्थान वाले वोट डालते हैं, वो जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के पास पूरा अधिकार है। जब पंजाब वाले वोट डालते हैं, वो जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के पास पूरा अधिकार है। तो जब दिल्ली वाले वोट डालते हैं, हम जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के पास आधा अधिकार क्यों है? हमें मोदी जी कहते हैं जी दिल्ली आधा राज्य है, इसीलिए सरकार के पास सिर्फ आधी पावर है। इस आधी पावर वाली सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक कर दिया। इस आधी पावर वाली सरकार ने आपके बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल दिए। लेकिन आज जब हमारे बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आते हैं, 80%, 90% नंबर लेके आते हैं, तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने के लिए देश भर से बच्चे आते हैं। हरियाणा के कॉलेज में वहां के बच्चों को 85% सीटें मिलती हैं। कर्नाटका के कॉलेज में कर्नाटका के बच्चों को 85% सीटें मिलती हैं। महाराष्ट्र के कॉलेज में महाराष्ट्र के बच्चों को 85% सीटें मिलती हैं। तो क्या दिल्ली के कॉलेज में दिल्ली के बच्चों को 85% सीटें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिस जिसको लगता है मिलनी चाहिए, अपना हाथ खड़ा करके दिखाइए। आज पूरी दिल्ली की जनता को लगता है कि दिल्ली के बच्चों को 85% सीटें मिलनी चाहिए। हमने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, हमने उन्हें कहा कि दिल्ली के कॉलेज में 85% सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए कीजिए। तो मोदी जी कहते हैं जी हम नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है, यहां के बच्चों को 85% सीटें नहीं मिलेंगी। हमने कहा कि दिल्ली की सरकार ने स्कूल ठीक कर दिए, हमें नए कॉलेज खोलने दीजिए। तो मोदी जी कहते हैं कि हम नहीं खोलने देंगे, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है, दिल्ली में कॉलेज सिर्फ केंद्र सरकार खोल सकती है, दिल्ली सरकार नहीं खोल सकती। मोदी जी खुद तो नए कॉलेज खोलेंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल को खोलने नहीं देंगे। मोदी जी खुद तो 85% सीटें दिल्ली के बच्चों को देंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल को देने नहीं देंगे। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सरकारी स्कूल ठीक कर डाले, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार 50 नए कॉलेज बनाएगी, जिसमें 85% सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी, आपके बच्चों के लिए होंगी। यही समस्या सरकारी नौकरियों की है। देश के हर राज्य में वहां के बच्चों को, वहां के युवाओं को 85% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। राजस्थान में 85% नौकरियां राजस्थान के बच्चों के लिए होती हैं। हरियाणा में 85% नौकरियां हरियाणा के बच्चों के लिए होती हैं। तमिलनाडु में 85% नौकरियां तमिलनाडु के बच्चों के लिए होती हैं। तो क्या दिल्ली के बच्चों को, जो दिल्ली के स्कूल और कॉलेज से पढ़े हैं, क्या उन्हें दिल्ली की सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण मिलना चाहिए? जिस जिसको लगता है कि दिल्ली के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, अपना हाथ खड़ा करके दिखाइए। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि जितना काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, हम आज 2 लाख नई नौकरियां निकाल सकते हैं।
और उन 2 लाख नई नौकरियों में 85% नौकरियां दिल्ली के बच्चों को मिलेंगी, आपके बच्चों को मिलेंगी। इसलिए जरूरी है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आज दिल्ली वालों के सामने एक और बड़ी समस्या है। यहां पे आगे की तरफ हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं। आज दिल्ली में चाहे 8 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकता है। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सारी महिलाएं बताएं, सही कह रही हूं? क्यों? क्योंकि हर गली मोहल्ले में लड़के खड़े होते हैं, बदमाश खड़े होते हैं, जो लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। आज हमारी बेटियां जब कॉलेज में पढ़ती हैं, जब उन्हें कॉलेज से आने में देर होती है, तो हम 10-10 बार अपनी बेटियों को फोन करते हैं कि नहीं करते हैं? हम सब 10-10 बार अपनी बेटियों को फोन करते हैं। जब तक हमारी बेटियां घर के अंदर नहीं आ जाती हैं, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। हर गली में नशा बिकता है, आजकल हर गली में नकली दारू बिकने लग गई है। लेकिन जब कोई लड़के हमारी बेटी के साथ बदतमीजी करते हैं और हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमारी बात सुनती है क्या? बताइए, पुलिस हमारी बात सुनती है कि नहीं सुनती? आज दिल्ली की पुलिस दिल्ली की जनता की एक भी बात नहीं सुनती। अगर आप पुलिस से परेशान होंगे, आप कहां जाएंगे? आप अपने विधायक के पास जाएंगे, कहेंगे कि जी आपको वोट दिया था। लेकिन दिल्ली की पुलिस आपके विधायक के अंडर भी नहीं आती, गोयल साहब के अंडर नहीं आती। अगर आपके इलाके में महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है, तो आप अरविंद केजरीवाल के पास भी चले जाएंगे। आप उन्हें कहेंगे कि विश्वास नगर चौराहे पे जब 60 फुटा रोड पे हमारी बेटी आती है तो लड़के उसे परेशान करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर भी नहीं आती है। क्या आपको पता है दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? किस किस को पता है दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, मोदी जी के अंडर आती है। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की चिंता करेंगे? प्रधानमंत्री जी कश्मीर और छत्तीसगढ़ की चिंता करेंगे? या प्रधानमंत्री जी विश्वास नगर, कस्तूरबा नगर और ज्वाला नगर की चिंता करेंगे? आप ही बता दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कभी विश्वास नगर, कस्तूरबा नगर, ज्वाला नगर का नाम भी नहीं सुना। वहां की महिलाओं को सुरक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि जब दिल्ली की पुलिस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर आएगी, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, दिल्ली की पुलिस तब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर आएगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की पुलिस की व्यवस्था को भी ठीक करेगी, दिल्ली की हर महिला को इतनी सुरक्षा देगी कि वो अंधेरा होने के बाद भी अपने घर से बाहर कदम रख सके। इसलिए हमें जरूरत है पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए। आपके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। सब खड़े होकर उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी।